جواب دوں؟ جی سر. بیچ میں ٹوکنا نہیں, میں جواب دے رہا ہوں. اور دوسرا جواب اب دوسرا جواب یہ ہے, اگر معاملہ انسان کے ساتھ ہے, اگر وہ انسان معاف کرے گا, نہیں بھائی, اگر وہ انصاف انسان کا ریپ ہوا ہے, اگر وہ معاف کرے گا تو معاف کر سکتا ہے. لیکن جو معاملہ اللہ انسان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, لیکن اگر انسان سے معاملہ ہے وہ معاملہ معاف نہیں ہوگا. کیا اللہ چاہے تو معاف نہیں کر سکتا؟ حقوق دیکھ دو چیزیں آپ تو ٹھیک سے نہیں پڑھے. اگر معاملہ انسان اور ایک حدیث ہے, اگر وہ انسان جب تک معاف نہیں کرے گا وہ معافی نہیں ملے گی, اس کی سزا ملے گی. وہ انسان تو عدالت میں جا کے کیا پتا وہ انسان جائے, کیا پتا وہ انسان معاف کر بھی دے جس کا ریپ ہوا ہے, کیونکہ اس کے اوپر کیا پتا کوئی پریشر ہو, وہ جو بھی ہے, کیا پتا وہ اپنا عدالت میں بیان بدل لے, وہ مومن لڑکی جس کا ہوا ہے. اب اس کے گھر والے نہیں کر رہے معاف, اس نے تو معاف کر دیا, اب کیا ہوگا بھائی؟ جس کے اوپر اگر وہ معاف کر رہا تو بات ختم ہو گیا. ہاں نا, کیونکہ ریپ, ارے بھائی تو ریپ کسی ایک انسان کا نہیں ہوتا ہے. جب کسی کا ریپ ہوتا ہے اس کا پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے, صرف اس لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہوتی ہے, سمجھو اس بات کو. تو یہ ایک انسان کے ساتھ کیا ہوا گناہ نہیں ہے, یہ اس پورے خاندان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس سے پورے سوسائٹی کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایک انسان کے ساتھ کیا ہوا گناہ نہیں ہے, یہ ایک سوشل کرائم ہے. میں نے 2 جواب دیا. ہاں, ایک کیوں نہیں دیا؟ ایک سوال کا 2 جواب دیا, ہوشیار. کیونکہ تو ایک جواب پہ بھی اعتبار نہیں کرتے, اس لیے 2 جواب دیے تو منافع. ارے میرے بھائی, کیا اللہ چاہے تو حقوق العباد معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ کی قدرت کے اندر حقوق العباد معاف کرنا چاہیے؟ اگر وہ معاملہ انسان سے تو انسان معاف کرے گا. ارے لیکن وہ انسان مسلمان ہونا چاہیے نا. نہیں, کوئی بھی ہو, اگر مان لو آپ مسلمان نہیں ہوں, آپ کو میں اگر بنا وجہ تکلیف دیتا ہوں تو وہ اگر آپ معاف کرو گے علی مائک ٹھیک کرو اپنا, 1 منٹ ذرا. محبوب صاحب آپ ذرا میوٹ کرو اپنا. محبوب صاحب کی طرف سے بہت ڈسٹربنس ہے, میوٹ کریں اپنا. اوکے علی, تم نے جو بات بولی ہے کہ چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو, اس کا جو ہے نا اللہ معاف نہیں کرے گا, اور حقوق العباد اس کا وہ خود ہی معاف کرے گا, تو یہ اللہ معاف کرے گا. اس کا ریفرنس دو, ثابت کرو, کہاں لکھا دکھاؤ. بھائی حدیث ہے, اگر دکھاؤ حدیث, انسان کے ساتھ حدیث کا نمبر یاد بتاؤ, نہیں حدیث کا نمبر بتاؤ, ڈھونڈنا پڑے گا. ڈھونڈ کے لاؤ. غیر مسلم کا نام ہونا چاہیے اس کے اندر, جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ, جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. ڈھونڈ کے لاتا ہوں. بھائی ٹاٹا سی یو. ہاں بھائی ٹاٹا سی یو, ڈھونڈ کر کے لانا تب آنا, ٹھیک ہے, جاؤ جب مل جائے آتا. اوکے محبوب علی, اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ اپنا ریمیوٹ کرو, میرے کو ایک بات بتاؤ. اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, اس نے آپ کے مسلمانوں کی 2 بچیوں کو مدرسے سے اغوا کر کے ان کا ریپ کروایا, اور پھر ان کو مار کر کے مدرسے کے سامنے پھینک دیا. جی اب کیا خیال ہے؟ وہی سمیر بھائی, میں کیا بتاؤں, بھلے وہ گنڈا تھا, موبائلی تھا, مافیا تھا, ریپسٹ ہے, بڑا ڈان ہے, وہ بولے گا تھا, بڑا اس کے لیے قانون میں ہمارے دیش کا ہے نا بولے گا ایسا. ہاں, گیا سوال, قانون ہے نا, جیسا کہ ہمارے نپور شرما کے کیس میں وہ ٹیلر کا جو معاملہ تھا, آگے بڑھو نا یار, میں نے مان لیا ہم اس کے سمرتھن میں نہیں تھے ہم. اوکے ٹھیک ہے نا, کہہ دیا نا میں نے, قانون ہے, آگے بڑھو. ندیم بھائی مان لیا, میں نے مان لیا قانون تھا اس کے لیے, آگے بڑھو. اب کیا کہنا ہے؟ ہاں, تو میں ایک بات اصل جو کہنے آیا تھا فرسٹ ٹائم میں, اس کو مارا کس نے؟ ہندو جاگروک سمیلن, ہلو بھائی محبوب علی مدے پر آؤ, اس کو مارا کس نے؟ ہاں وہ ختم ہو گئی بات, وہ ختم ہو گئی. کس نے مارا؟ نہیں ختم نہیں ہوئی, ابھی شروع ہوئی ہے. کس نے مارا اس کو؟ اس کو عربی کو کس نے مارا؟ قانون نے مارا. قانون نے مارا بھائی, قانون سزا دیتا تھا اس کو, بتا رہا ہوں. ارے تو بھائی اس کو مارا کس نے ہے؟ اس کو مارا کس نے ہے؟
अरे वो जय श्री राम बोलकर 3 लोग आए थे, मार के चले गए, कानून हमारा मार ओ सकता था, भाई ओ इनकाउंटर भाई कर सकता ओ था। भाई, कोई जय श्री राम बोल के मारे या कोई बोल के मारे? उसे मारा किसने है, ये पूछ रहा हूँ। उसे मारा किसने? किसने वो मारा 3 उसे? नौजवान थे, वो कानून तो नहीं था ना, वो कानून के वर्दी वाले लोग तो नहीं, तो वो तो कानूनदार तो भाई नहीं थे, कानून, ओके, कानून के नुमाइंदे थे, सरकार के लोग थे, नहीं थे। आम आदमी थे वो, तो गुंडे थे ना। उसने कई कई लोगों को मारा, उसको गुंडों ने मार दिया, बात खत्म हो गई। तो अब कानून ने उन लोगों को पकड़ करके सजा देने के लिए मुकदमा दर्ज कर दिया है, अब तुम क्या चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल सही, ये बात ठीक है। तो बात खत्म हो गई। हाँ ये भाई बात गुंडों ठीक ने है, मारा हाँ ना, हाँ समीर कानून ने भाई, नहीं मारा ना उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उनको सजा देगी, हमारा देश का कानून है, तमाम तरह से। असल एक बात के लिए जो आया था समीर भाई, मैं बात अटक की चली तो चली, पहले वाली बात बता रहा हूँ कि आप वो हिंदू जागरूक सम्मेलन में आए थे आप, है ना? तो उसमें एक बात कही थी आपने, सनातन को समझने के लिए एक जीवन नहीं, कईयों जीवन लेना पड़ता है तो भी सनातन समझ में नहीं आता बोले आप कौन से जीवन में समझ में आया आपको सनातन, ये मेरा सवाल है। वही मैंने ये भी बोला था, लेकिन अगर इंटेंशन समझना है, मकसद समझना है, तो वो सिर्फ एक ही है, इंसानियत। इसके बाद आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इंसानियत, आप ये भी तो बोला था ना कि अगर आप जी पूरे हाँ पूरे सनातन को समझना चाहेंगे तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पूरा सनातन की किताबें, जितनी रेफरेंसेस हैं, जितनी भी उनकी उसके रिलेटेड थ्योरीज हैं, उस सबको नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आपको एक जिंदगी में सनातन को इन शॉर्ट समझना है तो इंसानियत को समझ लो, आप सनातन को समझ जाओगे, बात खत्म। अच्छा अच्छा, आप ऐसा बताया तो ठीक है, ठीक। मैं इसी जिंदगी में समझ गया, इंसानियत को समझ के। अब आप बताएं, आपको क्या एतराज है इस पर? हाँ तो एक बात, दौरान में एक बात हुई थी, इस्लाम पहले या देश पहले, तो मैं बताया था इस्लाम पहले, क्योंकि मेरे मरने के बाद इस्लाम के ताल्लुक से पूछा जाएगा मेरी यार कब्र में, आप यार लेकिन आप देश के यार आप ताल्लुक। यार यार आप बार बार मेरे को वही चीज क्यों बता रहे हो? जो चीज आपने ऑलरेडी किसी और के साथ डिस्कस कर ली है, आपने मेरे साथ डिस्कशन नहीं किया था, वो साहिल भाई के साथ किया था, तो उस पर आपका डिस्कशन हो गया। अभी तो आप मेरे को बार बार ये क्यों बता रहे हो कि आपने क्या बोला था? मेरा टॉपिक है मोहम्मद को मेराज क्यों हुई, क्या क्या तोहफा मिला और क्यों मिला। मेरा टॉपिक ये है, इस पर आप मुझे जवाब दो। आप मानते हो तोहफा तो मोहम्मद को सबसे मेराज पहले हुई? अल्लाह के दीदार का हुआ, बाद में नमाज का तोहफा हुआ, ना जाने क्या क्या इनामात इकरामात अल्लाह ने दे के भेजा है, अल्लाह जाने, और अल्लाह के रसूल जाने, जितना रसूलुल्लाह ने बताया उतना हमको मालूम है अरे तो आपको रसूलुल्लाह ने क्या बताया? कुछ नहीं कि बताया। नमाज मोमिनों की मेराज का जो तोहफा लेकर आए नमाज है, बाकी तमाम तो तो चीजें जो अत्तहियात तो में जो भाई पढ़ते हैं वो अल्लाह और अरे अल्लाह के रसूल का भाई, मुकालमा है। रुक, बस 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 बस। भाई नमाज मेराज से पहले था कि नहीं? इस तरह जैसा हमको जो तरतीब से मिली वैसा नहीं था ना। तो कैसा था? तो तब भी बैठ के बना लेते। अल्लाह ने 5 हाँ नमाजें दी हैं, कुरान में कहीं लिखा है अल्लाह बिल्कुल, ने मेराज में 5 नमाजें दी है? तो है ना, 50 की दी थी, 5 हो गई बिल्कुल। कहाँ लिखा है कुरान में, दिखाओ। कुरान में है। कुरान में नहीं था, कुरान में कहता है, कुरान में तो नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। कितने टाइम की? कुरान में नमाज। हाँ 2 टाइम इशारे से है, 3 टाइम वादे तौर पर बताया गया। तो 3 टाइम है इशारे ना, तो से 5 टाइम की कहाँ से मिली? 5 टाइम की इशारे से कहाँ से पढ़ कैसे रहे होगी? हो? नहीं नहीं, हम मैं तो क्या इशारतें बता रहा मान हूँ, लेते हैं भाई। कुरान में भी इशारतन जो बयान किया गया है, जो वक्त के हिसाब से जो बयान किया गया है, वो भी सिर्फ 2 वक्त की नमाज है, 2 वक्त की। तो ये 5 टाइम की कहाँ से लाया? देखो हमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मानना है ना, कुरान में भाई पहले में तो अल्लाह अच्छा कह ही नहीं ठीक रहा है। ना। हम्म? अल्लाह कह नहीं रहा ना, जिसकी बात आप माने वो अल्लाह कह नहीं रहा कि आप 5 टाइम की नमाज पढ़ो। कहाँ कह रहा, दिखाओ। देखो मुहद्दिस इकराम वो फरमाते हैं, सिर्फ उलमा इकराम अरे भाई फरमाते हैं, हदीस के अरे रेफरेंस से भाई आपने फरमाते ये हैं। कहा, सुने ना मेरी बात, आपने ये कहा कि महराज का जो मकसद था वो अल्लाह को अपना दीदार कराना और नमाज का तोहफा देना था। महराज का तोहफा जो है वो नमाज है। तो नमाज तो पहले भी पढ़ रहे थे लोग। इवन ये देख लो कि मोहम्मद खुद महराज से पहले मस्जिद अल अक्सा में, आपके मुताबिक मस्जिद अल अक्सा में नबियों को, पैगंबर को नमाज पढ़ा करके गया, उनकी इमामत करा करके। तो फिर ऐसी कौन बिल्कुल सी सही नई है। चीज दे दी अल्लाह ने? ऐसी कौन सी अल्लाह ने नई चीज दे दी जो पहले नहीं थी?
पहले भी नमाज थी, लेकिन ये 5 वक्त की जो मुकर्रर हुई ये नहीं था ना, दिन में 5 टाइम 5 वक्त की ये अच्छा, पाँच तो वक्त मेराज अल्लाह के ने, टाइम पे मुकर्रर हो, एक मिनट, 5 एक मिनट, वक्त 5 वक्त अल्लाह ने मुकर्रर की, 5 वक्त अल्लाह ने मुकर्रर की। हाँ बताते हैं, मुफस्सिरीन इकराम बताते हैं, उलमा इकराम अल्लाह ने बताते मुकर्रर हैं। की 5, ओके, अल्लाह ने मुकर्रर की 5 वक्त नमाज, ये बताते हैं मुफस्सिरीन। तो 50 टाइम की दी थी अल्लाह ने, तो फिर आए तो मूसा ने कहा ज्यादा है, कम करवा के आओ। अल्लाह ने तो मुकर्रर नहीं की फिर 5 टाइम की। अल्लाह तो कभी 50 दे रहा था, कभी 40 दे रहा था, कभी 30 दे रहा था, कभी 25 दे रहा था, कभी 15 दे रहा था, कभी 20 दे रहा था। ये तो दूसरे लोगों के सजेशन थे कि इतनी नहीं पढ़ पाएंगे, कम करा के लाओ। अल्लाह ने तो फिर वो मुकर्रर करके नहीं दी है। वो तमाम तर चीजें समीर भाई हिकमत थी वो। जी, हजरत मूसा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत नहीं पढ़ेगी ये नमाज, अल्लाह को नहीं पता था, नहीं नहीं अल्लाह पता को सब मोहम्मद था वो। नहीं सुने ना, आपको तो अल्लाह और मोहम्मद की माननी है ना, उन दोनों को नहीं पता कि उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, मूसा बता रहा है। तो फिर आप मूसा को क्यों नहीं फॉलो करते, अल्लाह और मोहम्मद को क्यों फॉलो करते हो? मूसा का उलमा इकराम फरमाते हैं, मूसा का ये बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पास भेजना, उम्मत का नाम लेना है, उम्मत से ओके, प्यार तो मतलब जताना है, आप मूसा का मतलब। एक मिनट, क्या बोला आपने? मूसा का बार बार अल्लाह के नबी को अल्लाह के पास भेजना, मतलब मूसा भी इतना पावरफुल था कि वो अपनी मर्जी से मोहम्मद को बार बार अल्लाह के पास भेज सकता था, नहीं ये बोल कुछ रहे हो कम आप? करा है क्या बोलने का मतलब है था, इतनी उम्मत आपकी तो नहीं फिर पड़ेगी, कुछ कम करा है क्या? अल्लाह तो अल्लाह अलाउ कर रहा था बार बार आने के लिए अपने पास। मतलब ना अल्लाह को पता था कितनी नमाजें सही हैं मुसलमानों के लिए, ना मोहम्मद को पता था, या मूसा को पता था कितनी मुसलमानों के लिए मूसा को नमाजें। पता था, और ये कह रहे हैं कि फॉलो करेंगे अल्लाह और उसके रसूल को, हम बताएगा मूसा। नहीं समीर भाई, वो तुम मकसद लोगों सिर्फ के दीदार का था, तुम लोगों का ईमान का ना बार असल में बार बेड़ा दीदार गर्क कराना हुआ पड़ा मकसद है, है वो। बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है तुम लोगों के ईमान अरे का। भाई, बार बार दीदार कराने की जरूरत क्या थी, एक ही बार बैठा करके दीदार करा लेता। एक बात बताएं मुझे, अगर आपका कोई महबूब है, महबूब अली, आप भाई आपका नाम भी महबूब है, अगर आपका कोई महबूब है और आपको ये पता चले कि आज पूरा दिन जो है उसकी वालदा घर पर नहीं है, और मैं पूरा दिन जाकर के उससे मुलाकात कर सकता हूँ या उसको अपने पास बुला सकता हूँ, तो आप उसे बुला करके पूरा दिन अपने पास रखेंगे सुबह से शाम तक, या कहेंगे तू जा फिर दोबारा, तू जा फिर से आ, क्योंकि मुझे बार बार तेरा दीदार करना है, तो तू 10-15 बार घर जा, अपने 10-15 बार मेरे पास आ, ऐसे बुलाएंगे कि पूरा दिन बुला This is करके thicker, बैठा right? लेंगे? या हो जी भाई, जी भाई, पूरा दिन बुला करके बैठाएंगे कि बार बार बुलाए भेजेंगे और बुलाएंगे, क्या करेंगे ये बताओ? एक बार भेजेंगे। हैं जी? हेलो एक महबूब बार भाई। भेज के ये कराएंगे। हाँ महबूब भाई I जरा like this सुनिए। one. अच्छा महबूब हाँ भाई, हाँ मिराज बोलिए साहब। रसूलुल्लाह जब मक्का में थे तब हुआ था कि मदीना गए थे तब हुआ था? मक्का में थे ना तभी। तो आप नमाज तो मक्का में ही मिला फिर 5 वक्त की, हाँ तो आप बता दें जी, कि मक्का में कभी अजान हुई हो 5 वक्त की? नमाज नहीं, जब मक्का मेराज से आए तो बाद में कलाम पाक में बाद में नमाज पढ़ दी ना 2 हिजरी में। अरे तो फिर मिराज में मिला क्या? मेराज में नमाज का तोहफा ही मिला ना। अरे भाई, तो वो फर्ज कब हुआ? जिस दिन मिला उसी दिन ना। That's नमाज तो लोग only पहले that's से so पढ़ रहे true. थे। आपका ये मानना है कि मेराज में 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई, तो मक्का में मेराज हुआ, तो आप मेराज में मक्का में आप 5 वक्त अजान होते हुए या 5 वक्त का नमाज पढ़ते हुए बता दें मुझे, नहीं है नहीं है नहीं है, इस तरह नहीं है। तो फिर कैसे? अरे बहुत टाइम खा रहे तू। महबूब हाँ भाई जरा सुनिए। मिराज का वाकया हुआ था, मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते। मानते हैं, मेरे साथ भी हुआ है। कैसा? मानेंगे? मैं भी गया हूँ, हाँ अपने पास भी होता है ना, जन्नत में 5 मैं भी तो रोज गया हूँ। होता है। मैं नहीं भी नहीं गया अपने हूँ, पास भी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं भी गया हूँ। अरे अरे महबूब हमारे पास भी साहब, मेराज होती, मुझे भी दिन में 5 टाइम महबूब होती है। साहब, अरे मैं महबूब भी जाता साहब हूँ। सुने यार, अरे महबूब साहब सीधा सीधा सुने वो यार, सपने में गए थे आप ना महबूब अच्छे साहब, भाई वो है। सपने में गए थे। ये लाइट स्पीड, लाइट ईयर कुछ जानते हैं? साइंटिफिक कुछ नॉलेज है अरे वो कि पढ़े छोड़ के यार, पढ़े नहीं हुए हैं? क्या हुआ लाइट अरे स्पीड को? महबूब साहब, क्या हुआ लाइट स्पीड का? किस क्या हुआ? स्पीड किस स्पीड से गए हैं वो? किस स्पीड वो से गए घोड़ा हैं वो? किस स्पीड से गया था बताइए? किस स्पीड से गया था? हाँ, किस स्पीड से गया था?
अरे हम तो कह रहे हैं कि नहीं गया था, अच्छा ये जो बस लाइट सपना स्पीड की उसने आप बात दिखाया, कर रहे वो हो, सपना एक मिनट, महबूब अली हाँ ये जो साहब। आप लाइट स्पीड की बात कर रहे हो, लाइट स्पीड की बात कौन कर रहा है? कौन हम किसने? कर रहे हैं वही मैं सुन के मैं बोला ही लाइट स्पीड किसने लफ्ज बोला अभी? नदीम भाई नहीं, हम बात मैं नहीं कर बोला। रहे हैं। नहीं, समीर भाई मैं नहीं बोला ये। अच्छा आपने बोला है लाइट स्पीड के बारे में, महबूब अली। हम बोले हैं कि मैं तो हम ये भी गए थे, तो वो अच्छा बोल रहे हैं, वो अच्छा, बोल रहे हैं कि गए थे ये जो लाइट महबूब अली वो स्पीड साहब की ये आप इतनी देर बात से कर रहे बकवास हो कर रहे हैं। भाई, लाइट स्पीड की थ्योरी एक्सप्लेन है कुरान में, कहीं लिखी है? आपके अल्लाह ने बताया लाइट स्पीड क्या होती है? नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, बस मानना है ना, ईमान वही ना है। तो हम उसमें नहीं गए। महबूब भाई इतनी देर से समीर गोल गोल घुमा रहे हैं, उसका जवाब हम दे रहे हैं कि नहीं मेराज का जो साहब, घर घुमा वो नहीं रहा सपना हूँ देखे मैं, हुए थे, वो जो सपना है देखे वो हुए थे। बता रहा हूँ। अरे मुझे भी अरे मेरा महबूब नहीं थी, साहब, अरे महबूब महबूब भाई साहब वो आप सीधा रसूल सुने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपना देखे एक हुए मिनट रुकिए सर। थे, वो मिराज उराज नहीं गए थे, उनको दौरा पड़ा था, सपना देखे हुए थे, या तो फिर बहाना बनाए थे, दो चीज हुई थी। अरे सर, इतनी अच्छी ये आप बता सकते हैं कि अल्लाह कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, दाएं है कि बाएं है, कुछ बता सकते हैं? अल्लाह की शान के मुताबिक कहीं भी रह सकता है अल्लाह, कहीं भी रह उसको सकता, कैद किधर थोड़ी है? करते हैं। अल्लाह अरे तो महदूद फिर किधर थोड़ी है? है, लामहदूद है वो। आसमान अरे का तो अच्छा फिर अभी लाइट वो की छोड़ो, स्पीड से ये जाने की तो जरूरत क्या थी? नदीम भाई वेट एक मिनट रुकिए नदीम भाई, ये तो खैर जलेबी वाले क्वेश्चन आंसर है, इनमें बनाए। महबूब साहब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आपकी जी इजाजत है। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, जब मोहम्मद साहब को महराज हुई तो उस वक्त उनको जिब्रील ने कहाँ से लिया था, और जब वापस लेकर के आया तो छोड़ा था? उम्मे हानी के घर थे उन्होंने। अच्छा उम्मे हानी के घर, आपके रसूल अल्लाह उम्मे हानी उनकी बीवी नहीं थी, महरम नहीं थी, चचा की लड़की थी, गैर महरम थी। दूसरी नहीं बात यह है कि शादी हमने, हो चुकी थी। हाँ सुन लेना पहले यार, सुन लेना पहले। हाँ बोलिए। उम्मे हानी गैर महरम थी, चचा की लड़की थी, उसकी शादी हो चुकी थी। रसूल अल्लाह की बीवी खदीजा का 15 दिन पहले इंतकाल हुआ था, 10-12 दिन 15 दिन पहले। आपके रसूल अल्लाह रात में उम्मे हानी के घर क्या कर रहे थे, गैर महरम के घर? कौन थी बोले वो उम्मे हानी? उम्मे हानी अभी उनके आप चचा मुझे अबू बताएंगे तालिब की उम्मे बेटी हानी। थी और गैर महरम थी। वो उनके घर क्या कर रहे थे आपके रसूल रात को? नहीं मैं ये नहीं सुना, पप्पू उनकी पप्पू थे बोल के सुना समीर भाई। नहीं पुप्पो नहीं थी, उनके चचा हाँ, अबू तालिब की बेटी थी, चचेरी बहन थी, और उनके लिए गैर महरम थी, क्योंकि आप रसूलुल्लाह उससे निकाह भी करना चाहते थे और अबू तालिब ने उनके साथ निकाह करने से मना कर दिया था। अब हम मुझे बताएं कि आपके रसूल अल्लाह गैर महरम औरत के साथ रात के वक्त उसके घर में क्या कर रहे थे, वो भी जब जब उनकी 10 दिन पहले उनकी बीवी का इंतकाल हुआ खदीजा का, और उसका भी शौहर है जो कि बाहर है, घर पर नहीं है उस वक्त। क्या करे थे आपके रसूलुल्लाह उसके साथ? तो उस वक्त अभी पर्दे का हुक्म नहीं था होगा शायद। गैर महरम के साथ रहने का हुक्म था रात को, पर्दे का नहीं था तो। हाँ रिलेशन में पप्पू यानी चाचा की बेटी है तो रह सकते ना, ऐसे क्या है इसमें? अच्छा चाचा के हैं? बेटे के साथ निकाह जायज नहीं हुआ था क्या तब तक? नहीं अभी तो जी। नहीं हुआ था ना, बाद में हुआ ना। अच्छा 33 की बजाय तब तक नाजिल नहीं हुई थी, अब तब तक नहीं हुआ था। इसकी कोई दलील दे सकते हो कि महराज का वाकया जो जब हुआ तब तक जो है चाचा की बेटियों के साथ निकाह जायज नहीं था? कोई दलील दे सकते हो और वो इसकी आप? सूरह मोमिनून की वो आयत भी, अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करो, वो भी नाजिल नहीं हुई होगी उस वक्त, है ना? हाँ बिल्कुल नहीं हुई थी। अली भाई पहले तो ये बताओ मौदूदी की तफसीर का क्या नाम है? ओफ अल्लाह यार, ये कौन लोग हैं यार? और कुछ सवाल भाई? यार पहले मौदूदी की तफसीर का नाम तो बताओ, उस दिन तो बता नहीं पा रहे थे। तफमुल कुरान नाम है भाई, अभी याद आ गया, अब और बोलो। उस टाइम क्यों नहीं याद आ रही थी? क्योंकि अरे तो अब आ गई, कोई क्योंकि मसला सुनो हो तो, गया ऐसा क्या? सुनो, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं याद आ रही थी उस टाइम। क्योंकि मेरी रोजी रोटी नहीं बंधी हुई इस लिटरेचर से जो मुझे याद रखना पड़े। ये मेरे लिए एक सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे दिमाग में याद रखना मुझे ज़रूरी नहीं लगता। और बहुत दुनिया की इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे, जो मेरे दिमाग में मुझे रखना ज़रूरी लगता है। तो अगर ये उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन होती तो मैं याद रखता, क्योंकि ये इतनी बेकार इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए याद रखना कि मौदूदी की तफसीर का नाम क्या है, इसलिए ये मैं भूल गया। इन्फॉर्मेशन यार सुने एक्स मुर्तद साहब, आपका नाम क्या है? वो व्हाट इज योर नेम? वेट, आई वाज टॉकिंग विद समवन, आप बीच में आकर के मुझे इंटरप्ट कर दिए और बात भी Yeah, right. एकदम आउट ऑफ टॉपिक ही कर रहे हैं।
एकदम हवा हवाई बातें, जमीन के ऊपर की या ना तो जमीन के ऊपर की ना आसमान के नीचे की, जमीन के नीचे की और आसमान के ऊपर की बातें कर रहे हैं आप। भैया एक मिनट रुक जाए, आपके साथ बात करूंगा मैं टॉपिक पे। महबूब भाई आपने मेरे को जवाब नहीं दिया, आपके रसूलुल्लाह उम्मे हानी हाँ के घर पे क्या कर रहे थे रात को? क्या कर रहे थे, हमने उलमा इकराम से सुना है समीर भाई कि आज की रात में मेराज होने वाली है, तो फरमाया ये गया कि आज की रात जिब्रील को बगैर इजाजत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में आना है, इसीलिए आप हुजरे में मौजूद ना थे, उनके फुप्पू या हजरत अबू तालिब के बेटी के पास थे, क्योंकि वो उनका क्या कर हुजरा रहे नहीं थे? था। अरे क्या कर रहे थे, वो तो हम वो ऐसा कैसे बोलेंगे हम क्या कर रहे थे, मेराज की रात मेराज होने वाली है, वहां पे थे उन्होंने। रसूलुल्लाह को पता था कि मेराज होने वाली है मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मालूम? अच्छा कहाँ लिखा है, दिखाओ दिखाओ रेफरेंस दिखाओ। हर बात रेफरेंस बोले तो कैसा? तो हर बात तुम जो बोलोगे वो थोड़ा ही ना, हाँ, तुम कुछ भी बोल तो तुम कुछ भी बोलोगे विदाउट रेफरेंस हम मान लेंगे? कुछ बातें चलो ठीक ऐसी है, है अल्लाह और अल्लाह के अरे रसूल सुनो के ना, बीच सुनो, में। तो आपको कैसे पता लग रही वो जब अल्लाह और बात अल्लाह के समझ रसूल में के ना बीच आए की ना बातें तो आपको कैसे बात पता चली? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बीच की बात है, जब समझ में ना आए तो उन्हीं पर छोड़ दो, हम क्या जाने, यही नहीं नदीम बोलेंगे भाई बार एक बार। मिनट, नहीं नदीम भाई एक मिनट, चले मैंने मान लिया कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बीच की बात है, तो तुमको कैसे पता चली? तुमको अल्लाह बताया कि रसूल अल्लाह? कुछ बातें समझने की रहती हैं, बोलने से नहीं रहते। आप जैसा कि अलीफ लाम मीम की ये अच्छा तर्जुमा ये किसी ने किया बताइए? तो अब ये अपने अपने आप से समझ लिया या इसके लिए कोई सोर्स, कोई इंफॉर्मेशन, कोई हवाला कुछ है आपके पास? बस ये आप समझ लिया, ऐसे जो मुंह उठाया वो समझ लिया? क्योंकि अल्लाह और मोहम्मद के अलावा बस फिर जिब्रील ही बचता है, फिर या तो अल्लाह और मोहम्मद ने बताया आपको या जिब्रील साहब आए आपके पास। जिब्रील आए थे इनके ऊपर भाई, सिर्फ इनके ऊपर नहीं, तमाम मुसलमानों के ऊपर जिब्रील आता है अली भाई यार। यार हाँ, महबूब वो अली स्ट्रीम भाई में, सुने, जब हम स्ट्रीम कर रहे होते हैं, नहीं जैसे ही नहीं ये नहीं स्ट्रीम ज्वाइन नहीं करते हैं समीर मुसलमान, भाई, इन पे जिब्रील आना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप सुने देखेंगे ना कि महबूब भाई, अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपके की शान और अजमत को जा यार जा, मैं अल्लाह के मेरे भाई रसूल की अजमत को देखना। एक ही मैं तुमको सलाह दूंगा मेरे भाई, कुछ जो तुम्हारे मौलवी बैठे हैं ना मदरसों में, जो तुम्हारे नाम से चंदा खा रहे हैं, मदरसों के नाम पर चंदा ले रहे हैं, तुमसे बाकायदा पैसे ले रहे हैं, हर रमज़ान को अनाज दे रहे हैं, तरावी के पैसे दे रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, इनको बोलो कुछ काम करो, झोपड़ी वालों इन एक्स मुस्लिमों को जवाब दो। ये लोग तो हरामी के बच्चे आते नहीं है हमारे चैनल पर, तुम जैसे मुँह उठा के आ जाते हैं जिनको ए का पता ना बी का पता।